students, how are you all? Hope you all are doing very good. So today students, we are going to start our 7th chapter of class 4th, which is about adaptations in plants. Okay, let's start it. Our planet Earth is made of 3 parts of water and 1 part of land. A rich variety of plants are found both on land and in water. Different places have different climatic conditions. Over millions of years, plants have slowly changed themselves to suit the habitat where they grow. These changes or characteristics which enable them to live in their environment are called adaptations. So students, जैसे कि हमें पता है हमारा जो planet है Earth वो 3 part of water and 1 part of land से बना है. And एक rich variety of plants हैं जो कि दोनों ही जगह हमारे Earth पे मिलेंगे, यानी कि Earth के water वाले part में भी and land वाले part पे भी. Different places पे different climatic conditions होती हैं and million of years से plants उन्हें क्या कर रहे हैं, खुद की body को change कर रहे हैं अपने habitat के अकॉर्डिंग सूट करने के लिए जहाँ वो ग्रो करते हैं. सो यही चेंजेस या यही कैरेक्टरिस्टिक्स जो इन्हें अनेबल करते हैं कि ये अपने एनवायरनमेंट में इजीली सर्वाइव कर सके, इन्हीं चेंजेस को क्या कहा जाता है, अडेप्टेशंस कहा जाता है. अब अडेप्टेशंस जो हैं वो डेवलप होते हैं किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट के अकॉर्डिंग, कि वो ऑर्गेनिज्म किस प्लेस पे सर्वाइव कर रहा है उसी अकॉर्डिंग उसके अंदर वो चेंजेस डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, सो दैट वो वहाँ पे इजिली सर्वाइव कर सके. प्लांट्स को 2 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है on the basis of their habitat, that is terrestrial plants and other is aquatic plants. Okay, number 1 we have terrestrial plants. Okay, so first of all we have terrestrial plants. Terrestrial plants are the plants which grow on land. They grow on the plains, on the cold snowy mountains, in marshy plains and hot and dry desert. So terrestrial plants वो plants है जो कि land area पे grow करते हैं, फिर चाहे वो plains हो, cold snowy mountain, marshy plain, hot and dry deserts. Okay, अब वो प्लांट्स जो प्लेन्स में ग्रो करते हैं दे हैव मेनी ब्रांचेस, इनके पास काफ़ी सारी ब्रांचेस होती हैं एंड लश ग्रीन स्प्रेडिंग क्राउन्स होता है एट द टॉप ऑफ द ट्री. दे हैव थिन लाइट वेटेड लीव्स, इनकी जो लीव्स है काफ़ी पतली होती हैं, थिन एंड लाइट वेटेड होती है सो दैट ये सनलाइट को कैप्चर कर सकें. दे हैव थिक एंड स्ट्रॉन्ग ट्रंक्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम हार्श विंटर्स एंड इनके पास काफ़ी थिक एंड स्ट्रॉन्ग ट्रंक्स होते हैं जो इन्हें प्रोटेक्ट करते हैं हार्श विंटर सीजन से. ठीक है, These trees shed their leaves throughout the year. And ये जो trees हैं अपनी leaves को throughout the year shed कर देते हैं and उसके बाद क्या new leaves इनमें grow होती रहती हैं. इन trees को deciduous trees कहा जाता है. They grow new leaves in the spring season. इनमें जो new leaves आती हैं वो कौन से season में आती हैं? Spring season में आती हैं. Like neem tree, banyan tree, शीशम tree, ये सभी वो trees हैं जो कि plains में grow करते हैं. Then plants that grow in the mountains. अब वो plants जो कि mountainous regions पे grow करते हैं, they adapt themselves to heavy snowfall and cold condition. ये अपनी body को उस heavy snowfall, क्योंकि वहाँ काफ़ी snowfall भी होता है, ठंड ज़्यादा होती है, and cold conditions के according ये अपनी body को adapt कर लेते हैं. ये trees जो कि mountains पे grow करते हैं काफ़ी tall, straight होते हैं, and इनका जो crown वाला part है conical shape का होता है. They have tough needle-like leaves. इनकी leaves काफ़ी tough and needle shape होती हैं. And flowers होते हैं जिन्हें आप cones कहते हैं. And these adaptations allow snow to slide off easily from the tree and prevent damage by snow. And यही adaptations है जो कि इन्हें क्या करती है कि अगर कोई भी जब snowfall होता है तो इनकी leaves पर वो settle नहीं होता, easily slide down कर जाता है and इनकी leaves protected रहती हैं या damage नहीं होती हैं by the snow. Example, pine, cedar, spruce, cone, these are the trees which grow in mountainous region. The apple, walnut and almond trees. Apple, walnut, almond trees जो कि hilly, snowy एरिया में ग्रो करते हैं, इनके पास राउंड क्राउन्स होते हैं एंड ये अपनी लीव्स को विंटर सीजन में क्या कर देते हैं, शेड कर देते हैं. ओके, यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज एप्पल ट्री, वॉलनट ट्री एंड दिस इज आमंड ट्री. प्लांट्स दैट ग्रो इन डेजर्ट्स. अब वो प्लांट्स जो डेजर्ट्स में ग्रो करते हैं ये अपनी बॉडी को अडाप्ट करते हैं टू हॉट एंड ड्राई कंडीशंस अलॉन्ग विद एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर, क्योंकि डेजर्ट एरिया में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, ड्राई रीजन है एंड पानी की भी वहाँ शॉर्टेज होती है. सो इन सभी कंडीशंस के अकॉर्डिंग डेजर्ट प्लांट्स खुद को अडाप्ट कर लेते हैं. कैसे? दीज प्लांट्स हैव टिनी लीव्स और स्पाइंस. इन प्लांट्स की जो लीव्स है काफ़ी छोटी छोटी होती हैं, स्पाइंस होते हैं, सो दैट इनकी बॉडी से लेस इवेपोरेशन हो, है ना, और ऑन हॉट सनी रहे, यानी कि बॉडी से पानी का जो इवेपोरेशन है या वाटर लॉस है वो कम से कम हो, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ वाटर की शॉर्टेज है. कैक्टाई डेवलप थॉर्न्स टू डिस्करेज एनिमल्स फ्रॉम ईटिंग देम. कैक्टी जो कि एक तरीके का डेजर्ट प्लांट है, उसके अंदर थॉर्न्स यानी कि कांटे डेवलप हो जाते हैं सो दैट कोई एनिमल्स इन्हें वहाँ पे क्या ईट ना करे, खाए ना. ये वाटर स्टोर करते हैं अपनी स्टेम में. इनकी स्टेम काफ़ी ग्रीन, थिक एंड फ्लैशी होती है एंड कैक्टी प्लांट में फोटोसिंथेसिस भी जो है वो इनकी स्टेम के थ्रू ही होता है. Then they have roots which spread out deep under the ground in search of water. And
जो डेजर्ट प्लांट्स की रूट्स होती है वो क्या काफ़ी डीप अंडर द ग्राउंड स्प्रेड हो जाती हैं, क्या वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए. ओके, यू कैन सी द प्लांट्स विच ग्रो इन डेजर्ट एरिया लाइक कैक्टस, अकाकाई, डेट पाम्स, ये वो सभी प्लांट्स हैं जो कि डेजर्ट एरिया में ग्रो करते हैं. देन प्लांट्स दैट ग्रो इन मार्शी एरियाज, अब वो प्लांट्स जो मार्शी एरियाज में ग्रो करते हैं इनकी रूट्स ब्रीदिंग रूट्स होती हैं. द सॉइल इन मार्शी एरिया इज हाईली मॉइस्ट, मार्शी एरिया की जो सॉइल होती है बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होती है, क्ले एंड स्टिकी होती है. वाटर जो है इस क्ले सॉइल से ड्रेन आउट नहीं कर पाता, इसलिए रूट्स को क्या एनफ एयर नहीं मिलती है ब्रीथ करने के लिए अंडर द सॉइल. एंड इसीलिए ऐसे प्लांट्स की जो रूट्स होती है वो क्या साइड से बाहर निकल आती हैं, है ना, एंड बाहर आके क्या ब्रीथ करती हैं, वाटर लॉस सॉइल के अंदर ब्रीथ नहीं कर पाती. एंड इन प्लांट्स को मैनग्रूव्स कहा जाता है एंड इनके रूट्स को ब्रीदिंग रूट्स कहा जाता है. सुंदरबन, सुंदरबन आर नेम्ड आफ्टर द मैनग्रूव ट्री, सुंदरी. सुंदरबंस जो है इसका जो नेम रखा गया है ये मैनग्रूव ट्री था एक सुंदरी, उसी के नाम पर रखा गया है जो कि आपका सुंदरबन एरिया में ग्रो करते हैं. Now plants growing in coastal areas में जो plants grow करते हैं they are tall and straight with a crown of giant feather-like leaves which allow the wind to pass through. And in plants, ये जो plants हैं they can survive in salty water. ये plants easily salty water में भी survive कर सकते हैं, heavy rainfall में भी, यानी कि काफ़ी बारिश में भी ये plants easily survive कर लेते हैं. So these were the different types of terrestrial plants. And now we come to aquatic plants. Aquatic plants कहाँ grow करेंगे? Water में. That means pond, lake, seas and ocean. And aquatic plants में कितने types के होते हैं? Majorly 3 types के होते हैं. Number 1, fixed plants. Fixed plants are fixed to the bed of the pond or lake. Fixed plants जो होंगे pond और lake का जो bed वाला part होता है उसके साथ fixed होते हैं. इनकी stem light and hollow होती है. And इनकी जो leaves होते हैं काफ़ी broad leaves होते हैं जो कि water पे float करती हैं. The leaves have broad and flat surface to get enough water. And इनकी जो leaves है काफ़ी broad and flat होती है, flat surface होता है, so that इनको ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिल सके. ठीक है? Stomata is present on the upper surface of the leaves to absorb air. Okay, क्योंकि अंडर साइड वाला जो पार्ट है वो तो वाटर में मर्ज होता है, इसलिए इन प्लांट्स में जो स्टोमेटा है वो लीव्स के अपर वाले पार्ट में होते हैं. ओके, लीव्स के ऊपर एक वैक्सी कोटिंग होती है जो इन्हें ड्राई रखती है. फ्लेक्सिबल स्टेम्स कैन बेंड विद द करंट ऑफ वाटर टर्न दस प्रिवेंटिंग देम देयर ब्रेकेज एंड डैमेज. एंड उनकी जो स्टेम है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है जो कि ईजिली बेंड हो सकती है वाटर के करंट के थ्रू, एंड इस तरीके से इनमें क्या ब्रेकेज नहीं होता, ये डैमेज नहीं होते हैं. एग्जाम्पल लोटस, वाटर लिली, ये सभी कौन से प्लांट्स हैं? फिक्स प्लांट्स हैं. Then next we have underwater plants which are well adapted to stay and breathe underwater. ऐसे plants जो कि पानी के अंदर easily stay कर सकते हैं, breathe कर सकते हैं, उन्हें आप underwater plants कहेंगे. इनकी leaves काफ़ी narrow and long होती हैं and इनके पास stomata नहीं होते हैं to breathe. Okay, ये किसके थ्रू breathe करते हैं? अपने body surface के थ्रू breathe करते हैं. And their roots are fixed in the soil. इनकी roots soil में fixed होती है and ये pond को clean रखते हैं. Okay, चलो. Next is floating plants. Floating plants have spongy and swollen bodies filled with water. Floating plants कौन से हैं? जिनकी जो body है spongy and swollen होती है and किससे filled होती है? Water से. Okay? See, underwater plant का example they have given you pond bee, right? चलो. Now, next we come to what? Floating plants. And floating plants कौन से थे? जिनकी body spongy and swollen होती है, पानी से filled होती है. दे आर लाइट इन वेट, काफ़ी हल्के होते हैं वेट में, सो दैट इजिली पॉन्ड एंड लेक्स के ऊपर फ्लोट कर सकें. ओके, देयर रूट्स आर नॉट फिक्स टू द सॉइल. इनकी रूट्स नीचे सॉइल के साथ फिक्स नहीं होती है. एग्जाम्पल डकवीड, वाटर हाइसेंथ. ओके, नाउ सम स्पेशल प्लांट्स. अब कुछ स्पेशल प्लांट्स को डिस्कस करेंगे लाइक इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कार्निवोरस प्लांट्स भी हैं बिकॉज दे ईट इंसेक्ट्स. ये ऐसे प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं. दे आर ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन कलर के प्लांट्स हैं जो कि सॉइल में ग्रो करते हैं. These are poor in minerals. इन प्लांट्स के पास ज़्यादा मिनरल्स नहीं होते हैं और इसीलिए ये अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं बाय ईटिंग इंसेक्ट्स. एग्जाम्पल पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, सनड्यू प्लांट. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. ओके, नाउ नेक्स्ट वी कम टू पैरासिटिक प्लांट्स. पैरासिटिक प्लांट्स twine themselves around the stem of other plants and suck water and minerals from them. अब पैरासिटिक प्लांट्स क्या करते हैं? अपने बॉडी को दूसरे प्लांट्स की स्टेम के साथ क्या कर लेते हैं? ट्विन कर लेते हैं, यानी कि उसका स्टक हो जाते हैं एंड उसमें से उस प्लांट में से ये वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं. एंड इनके पास ये यूनिक अडेप्टेशन होती है फूड को ऑब्टेन करने की फ्रॉम द अदर
sources. Example, Cuscuta, orchids, Rafflesia, these are parasitic plants. Next, we come to the topic that is photosynthesis. See, plants give us a very wide variety of food. All plant food is made from three simple things, that is water, carbon dioxide and sunlight. See students, हमें पता है प्लांट हमें एक वाइड वैरायटी ऑफ फूड प्रोवाइड करते हैं एंड जितना भी प्लांट फूड आपको मिलता है वो थ्री सिंपल थिंग से बना होता है, दैट इज वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट. And the process by which green plant use sunlight, water, carbon dioxide to make food is called photosynthesis. And वो process जिसके through green plants sunlight, water and carbon dioxide का use करके अपना food prepare करते हैं, उस food making process को of the plants is known as photosynthesis. Okay? क्लोरोफिल जो कि ग्रीन पिगमेंट है, लीव्स में प्रेजेंट होता है प्लांट्स की, इट इज ऑल्सो एन एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस. ये भी एक काफी एसेंशियल कॉम्पोनेंट है फोटोसिंथेसिस का, बिकॉज इसका काम है क्या करना, सनलाइट को एब्जॉर्ब करना. एंड उसके साथ साथ जो लीव्स का ग्रीन कलर होता है दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल ओनली. ओके, द लीव्स ऑल्सो नोन एज द किचन ऑफ द प्लांट और द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट गैदर्स थ्री थिंग्स. अब लीफ जिसको आप किचन ऑफ द प्लांट या फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट कहते हो, ये क्या करती हैं, इन थ्री थिंग्स को जो कि इन्हें फूड प्रिपेयर करने के लिए चाहिए होती है, उन थ्री थिंग्स को कैसे ये गैदर करती है. नंबर वन, वाटर. वाटर लेते हैं फ्रॉम द सॉइल. कार्बन डाइऑक्साइड ये एब्जॉर्ब करती है एयर में से एंड एनर्जी मिलती है इन्हें सनलाइट से. एंड ये सभी कॉम्पोनेंट्स जो हैं ये क्या, इनमें केमिकल रिएक्शन होता है एंड तब जाके स्टार्च प्रिपेयर होता है एज अ फॉर्म ऑफ फूड इन द प्लांट्स. ओके, यू कैन सी इन दिस इक्वेशन ऑल्सो वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बनाया जाता है, स्टार्च प्लस ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज रिलीज एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में एक तो स्टार्च प्रोड्यूस होता है और उसके साथ साथ एक ऑक्सीजन गैस जो कि काफ़ी एसेंशियल है सभी लिविंग बीइंग के लिए, उनके लिए क्या ऑक्सीजन गैस भी प्लांट ही प्रोड्यूस करते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. एंड जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है प्लांट का, इट सेंड दिस स्टार्च टू डिफरेंट पार्ट्स फॉर स्टोरेज. Okay, the green leaves are called kitchen or food factories of the plant. The chapter is completed and I hope you all must have understood it very easily. So we'll meet you very soon in the next class with a new chapter. Till then, take care and thanks to everyone.